Okay. Very good morning, all of you. Uh, Today we are going to learn uh, how to identify the correlation between two different variables. For that, uh, we need to have some of the basic understanding related to correlation. What is correlation? What are the different types of correlation, which we had already discussed in our previous session. Now, let me quickly go through it once. Uh, the different types of correlation, we are knowing that for the correlation, we are having four different types: positive and negative correlation. When we can say that the correlation between two variables is positive if both the variables are moving in the same direction. Increment in first leads to increment in second variable. Decrement in first leads to decrement in the second variable. In that case, that correlation between both that variables will be positive. That means both are moving in the same direction. If both the variables are moving in the opposite direction, then the correlation will be negative, which we had already discussed. Then after linear and non-linear correlation, if the ratio of change in both the variable is constant, if the ratio of change in both the variable is constant, then the correlation will be linear. And if that particular ratio is not constant, then the correlation between two variables is non-linear. Now, take care. यहाँ पे एक बात याद रखनी है, both these are having ये जो दो टाइप हम लिख रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लीनियर नॉन लीनियर, ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से हो रहा है. ठीक है, ऐसा नहीं है या तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव होगा या तो फिर लीनियर नॉन लीनियर होगा. वी आर नॉट टॉकिंग लाइक दैट. इट्स क्वाइट पॉसिबल वन ऑफ द कोरिलेशन इज पॉजिटिव एंड लीनियर, positive as well as linear. One of the correlation, if we are finding the value of r, it is quite possible that it is positive and non-linear हो सकता है. ठीक है, negative linear हो सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता है positive negative दोनों साथ में. It is not possible. Is it good? Then after we had talked about we talked about the linear, partial and total correlation. जैसे कि मैंने बताया था, that was just for your information. We are not gonna deal with that particular in deep. And this one, the simple and multiple correlation, if we are dealing with only two variables at a time, if we are dealing with a bivariate data, in other words, then the correlation will be known as simple. And if we are dealing with multivariate data, then the correlation will be known as multiple correlation. Good. So this all the things we had already discussed. Let me go through it quickly. इसकी बात हो चुकी है, so आगे चलते हैं हम. Simple, partial, total. Good. Now, this is important. Methods of studying the correlation. We are knowing that we are having two different types of methods. First, that is graphical method. Second, that is mathematical method. Graphical methods में, in the graphical method, we are just supposed to discuss a single method, that is scattered diagram method, जिसकी भी बात हो चुकी है. But this can play a big role if we guys are going to have an offline examination, final examination. अगर offline रहती है, then I can surely say that this particular method, that scatter diagram method, will be there in your paper, and might be that question will be like that. Discuss about the scatter diagram method, or explain the scatter diagram method with its merit and demerit. Is it? So we are having only one graphical method, single graphical method, that is scatter diagram method, जिसमें कि हम 5 अलग-अलग possibilities के साथ बात कर रहे थे. वो क्या था अभी देखते. और उसके बाद जो आती है, that is mathematical method. अब mathematical methods we are supposed to cover 3 different methods over that. यहाँ पे हमको 3 methods सीखनी है, जिसमें से एक है that is Karl Pearson's method. Second, that is Kendall's rank correlation, and third, that is Spearman's rank correlation. So these 3 methods. Out of that, today we will be covering the first, that is Karl Pearson's coefficient, correlation of coefficient method. अब वो आज हम देखेंगे. अब उससे पहले जल्दी से देख ले कि ग्राफिकल मेथड से हम क्या कर रहे थे. Let me choose my pen. Yes, here it is. So what was the graphical method? किसी को याद है? Graphical method एक ही है, that is scatter diagram method. और उसमें हम क्या कर रहे हैं? Scatter diagram method. What we were doing in the scatter diagram method, we were supposed to plot
all the observations on the graph paper. सारे जो ऑब्जर्वेशन है हमारे पास x और y के, उसको हम ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे. Will be presenting one of the variable on x-axis, second variable on y-axis. This is just a labeling for both that variables. And after plotting all that points on the graph paper, if we are getting a straight line which is rising from lower left hand to upper right hand corner, then we can say that the correlation between x and y, in that case we can say that the correlation between x and y is perfect positive, और यहाँ पे r की वैल्यू होती है क्या 1. If you are getting this kind of nature, straight line मिलनी चाहिए rising nature में, then it is perfect positive. But it is not possible कि ऐसा ही मिले. अगर मान लीजिए कि मुझे instead of having a straight line, if I'm getting a straight line in the falling nature like this, yellow color से जो मैं represent कर रहा हूँ, after plotting all that points on the graph paper, if we are getting a straight line with this particular nature, then we can say that the correlation between x and y is perfect negative. और इस केस में r की वैल्यू क्या रहती है? The r will be -1. But it is not always like that कि हर बार straight line ही मिले. अब instead of having a straight line, suppose we are having a strip. स्ट्रिप, इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर हमको स्ट्रिप मिल रही है, स्ट्रिप माने कि ऐसी कोई स्ट्रिप मिल रही है, देखिए लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन, इफ यू आर हैविंग अ स्ट्रिप व्हिच इज इन द राइजिंग नेचर, जो कि लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर से अपर राइट हैंड कॉर्नर तक राइज कर रही है, देन वी कैन से दैट द कोरिलेशन विल बी, व्हाट इज दैट, कौन ज्वाइन किया, between, okay. In that case, यहाँ पे मैं कलर कोड का यूज कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में या तो फिर कोरिलेट करने में बहुत ही आसान हो. In that case, the correlation between x and y will be partial positive. उसके दो अलग अलग नाम दे रहे हैं हम, partial positive बोलते हैं या तो फिर high degree of positive correlation. In that case, the value of r will be between 0 and 1. वो 0 से 1 के बीच में रहेगा. अब इसी को अगर रिवर्स कर दे मानी कि if let me choose this color. If you are getting a straight line, instead of straight line, if you are getting a narrow strip which is falling from upper left hand corner to lower right hand corner, then the correlation between x and y will be known as a partial negative. And if it is partial negative, then the value of r will be lying between -1 and 0. Is it? It will be surely between -1 and 0. If we are getting a narrow strip, which is in the falling nature. So these are the four possibilities: perfect positive, perfect negative, partial positive, partial negative. And one more possibility was that if we are not able to get any of the nature, if all the points are randomly scattered on the graph paper, then we can say that there is no correlation between two variable x and y, और x और y के बीच में कोई correlation नहीं रहेगा. So these are the 5 different sketch you are supposed to discuss over the examination. जब भी बात करनी है स्कैटर डायग्राम मेथड की, तो ये 5 सिचुएशन आपको एक्सप्लेन करनी है इन योर वर्ड्स. आई एम टोटली फाइन विद दैट, बट ये पांचों कवर हो जाने चाहिए. और आपको याद क्या रखना है, ये थर्ड वाला जो है पार्शियल पॉजिटिव, उसके एक और नाम देते हैं हम, उसको बोल सकते हैं हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. एंड फॉर द फोर्थ वन वी कैन से दैट इट इज हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन. इज इट? तो इसको पार्शियल पॉजिटिव भी बोल सकते हैं और हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, पार्शियल नेगेटिव भी बोल सकते हैं और हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन भी बोल सकते हैं. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट डिमेरिट ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड इज वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आर. यहाँ से हमको r की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, सिर्फ इतना ही पता चलेगा कि r is lying in this interval 0 to 1. Here r will be lying in this interval -1 to 0, but we are not able to find its exact value. ठीक है? So, and what is r? r is coefficient of correlation, जिसके बारे में हमको पता है, जिसकी रेंज रहती है -1 से +1. ठीक है?
So this was a story related to scatter diagram method, जो कि मैंने तीनों लैब में डिस्क्राइब कर दी है. फिर से एक बार जल्दी से उसको रिवाइज कर दिया, क्योंकि this is very very important for the final examination. Now जाने दीजिए इसको. हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव, ये सारी बात हो चुकी. नो कोरिलेशन, merit demerit that I will be giving you. Covariance, we are done with the covariance. What is covariance, वो हमको पता है. Now this is graphical method, एक ही है जो हमने बात कर ली अभी. Now today's core topic is Karl Pearson's coefficient of correlation. Now what was the biggest demerit from the scatter diagram method? That is, we were not able to identify the exact value of R if x and y both are positively correlated और नेगेटिवली कोरिलेटेड. तो सिर्फ इतना पता चलेगा वो 0 से 1 के बीच में है या -1 से 0 के बीच में है. हमको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही थी, पर अब मिलेगी. कैसे मिलेगी? यूजिंग अ मैथमेटिकल मेथड, और यू मे यूज द वर्ड स्टैटिस्टिकल मेथड. सो नाउ बी रेडी विथ योर कैलसी. हमको जरूरत पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी, उसी से करेंगे. And in our calci, in our scientific calci, we are having a inbuilt function. If we are able to enter the data related to x and y, then वो तो correlation 2-3 टैब, 2-3 स्विच प्रेस करने से ही आपको मिल जाएगा. But in the examination, we are supposed to present a table even. Okay? So चलिए पहले overview लेते हैं. What is Karl Pearson's coefficient method? Now, Karl Pearson's coefficient method is like that. The coefficient of correlation R is equals to covariance of xy, covariance of x and y divided by its standard deviation. Standard deviation of x, standard deviation of y, product of both that. Now, we are knowing that this is a notation, small sigma is the notation we were using for the standard deviation. So ये standard deviation का ही notation है. पर यहाँ पे मैं sigma x क्यों लिख रहा हूँ? Because I will be having two different data, x and y. तो उसमें डिफरेंशिएट करने के लिए कि किसके कौन सा स्टैंडर्ड डिवीजन x के लिए, कौन सा स्टैंडर्ड डिवीजन y के लिए, वो डिफरेंशिएट करने के लिए आई एम यूजिंग दिस x as a suffix. So sigma x मानी की स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x, sigma y मानी की स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y. For that we are dealing with standard deviation. Standard deviation. Okay. So we are just supposed to identify this three unknowns, this three constant. Covariance क्या रहेगा x और y का, और दोनों का स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, वो आइडेंटिफाई करने से, वो इस फॉर्मूला में रिप्लेस करने से we will be able to get that. And this is a formula for the Karl Pearson's method. ये है Karl Pearson का फॉर्मूला. अब we may simplify this particular formula in 2-3 different ways. अब इस फॉर्मूला को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे? चलिए दिखाता हूं मैं आपको. Let me take you further. Okay, let me resolve this. Yes, we are knowing that the covariance of xy is what? Sigma x minus x bar y minus y bar divided by n. There is a formula for the covariance. Now standard deviation की formula क्या है? That is under root of variance. Variance कैसे मिलता है? Sigma x minus x bar all square divided by n से. If I am talking about the data x, तो यहाँ पे x minus x bar रहेगा. If I am talking about for the y variable, then it will be summation of y minus y bar the all square divided by n. Is it? So अब इन तीनों को यहाँ पे मैं replace करूँ in this particular formula, then it will look like this. डिनोमीटर का जो n है वो कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज डिनोमीटर में जो दो टर्म है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y, उन दोनों के डिनोमीटर में अंडर रूट n है. अंडर रूट n इंटू अंडर रूट n इट विल बी रूट n, और न्यूमरेटर वाला जो ये n है वो कैंसिल हो जाएगा. सो सारे टर्म वही है. देखिए इन द न्यूमरेटर वी आर हैविंग समेशन x माइनस x बार y माइनस y बार डिवाइड बाय समेशन x माइनस x बार द स्क्वायर, वो यहाँ पे समेशन y माइनस y बार द स्क्वायर, वो यहाँ पे दोनों के स्क्वायर रूट के साथ. सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला of the Karl Pearson's method, Karl Pearson's coefficient method. So this is, अगर कोई आपसे पूछे एग्जाम में what is the Karl Pearson's coefficient, what is the formula for the coefficient of correlation given by the Karl Pearson, then you are supposed to write down this. तो आपको ये लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है. क्यों ये लिखना है? Because this is the basic formula, यही एक फॉर्मूला है. अब इसको मैं किस तरीके से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, अगर मैं इसको इससे सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो ये भी होगा. इसको चलिए दूसरे और एक ढांचे में भी डाल सकते हैं. कैसे? लेट मी शो यू. पहले तो
सभी को एक काम करना है आज। अपनी साथ एक लैब बुक कैल्सी आपने रखा हुआ है, कैल्सी रखा हुआ है, लैब बुक, पेंसिल ले लीजिए जल्दी से, पेन या पेंसिल जल्दी से नोट डाउन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। आज आपको इसकी काफी जरूरत पड़ेगी। आज का सेशन ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, बस मुझे 5-10 मिनट बोलना है, बाकी तक का काम तो हम सब लोग मिलके करेंगे। सो नोट डाउन दिस फॉर्मूला राइट नाउ क्विकली। As is sigma x minus x bar y minus y bar divided by under root of sigma x minus x bar the square y minus y bar the square. Right now, all of you will denote this particular formula over your lab book. कहीं पे भी एक बार रफ बुक में कहीं पे भी लिख लीजिए, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, this is the first simplification of this formula. इस फॉर्मूला का मैंने पहला सिंप्लीफिकेशन ये किया। Have you done? Let me know quickly. Hopefully I am properly audible to all of you. Is there a kind of issue related to issue echo from my side? मेघना को इको आ रहा है मेरी साइड से? Okay, good. सभी लोग ने ये फॉर्मूला, ये वाली फॉर्मूला सभी लोग ने लिख ली अपने में कि नहीं? Jaideep Madani, unmute yourself. Jaideep Madani, unmute yourself right now. Yes, sir. Yes, sir. Instead of using WhatsApp, it will be good if you are focusing on the lecture. Instead of using WhatsApp, it will be good if you are focusing on the lecture. Am I clear? Yes, sir. Kaif, unmute yourself. Kaif. Mohammed Kaif, are you there? Mohammed Kaif. Mohammed Kaif, this is the last warning to you. Unmute yourself right now. Mohammed Kaif. Okay, Mohammed belongs to which batch? A, B or C? मेघना प्रांशुल को एक बता दो, मोहम्मद कौन सी बैच में है? सी। अनम्यूट कर अपने आप को अभी के अभी। Yes, sir. Yes, what you are doing? Sir, correlation. I am having all the access of your all the WhatsApp groups. जितने भी WhatsApp ग्रुप है तेरे पास सारी, मेरी बात सुन ले, तुझसे नहीं कुछ, तुझे नहीं बोला गया बोलने के लिए। Yes, sir. Yes, sir. What you are doing? Sir, instead of using that particular social media, it will be good if you are here. नहीं सर, मैं WhatsApp नहीं यूज कर रहा सर, मैं टाइप कर रहा था, लेकिन सर मैसेज रिकॉर्डेड का ऑप्शन बार बार ऊपर ही आ रहा था, इसीलिए सर टाइप नहीं हो पाया। फिर लेट में टाइप हुआ, यस भेजा मैंने। फिर टाइप नहीं हो पाया, ठीक है। यहाँ पे रहे बेटा, ठीक है। यस सर, मैं जस्ट बी हियर। अच्छी बात है। तूने ये फॉर्मूला नोट डाउन कर ली बेटा? यस सर। गुड। Jaideep, take care. Good. Now let me take you further because ये बहुत ही आसान है बच्चों। ये आप लोगों को पूरे मार्क्स, तकरीबन 20 मार्क्स देगा ये आपको। So it is very very easy. So please be with me. Good. This expression is known as Karl-Pearson coefficient of correlation, or we can say that Karl-Pearson's product moment coefficient of correlation. Product moment coefficient. Product moment. This is one of the alternate name. Okay. If you guys are searching a different kind of reference book, तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मिले कि product moment coefficient, that is nothing but the coefficient of correlation only. Okay. So this is a coefficient of correlation formula for the Karl-Pearson's method. Now let me show you. We can simplify this formula by other way also. Now पहली formula थी क्या? अगर मैं आपको यहाँ पे दूं, what was the first formula which you had mentioned on your lab book? कुछ इस तरीके से होगी, summation
x minus x bar y minus y bar divide by under root of summation x minus x bar the square into square root of summation y minus y bar the square. This is a formula which you had mentioned on your class book, is it? Now, if I'm going to simplify this particular formula, अगर इसको थोड़े से simplify कर रहे हैं हम, इन दोनों न्यूमेटर वाले जो प्रोडक्ट है, ये दोनों जो ब्रैकेट है उसको मैं एक्सपांड कर दूं x y x into y bar x bar y minus minus plus x bar y bar. ये देखिए यहाँ पे भाई ये, is it? And I'm simplifying this particular denominator, दोनों को simplify कर रहा हूँ मैं. सिंप्लीफाई करूं बहुत ही आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. देन कोई एक और फॉर्मूला निकल के आएगी. देखिए, this is nothing but a simplified version of the previous formula. This is what the simplified formula, simplified version of this particular. तो इसका मतलब ये हुआ, instead of dealing with this, ये भी सही है, ये भी सही है. So that will depend on the situation. That will depend on the situation कि या तो हम इस फॉर्मूला से काम कर रहे हैं एग्जांपल में, या तो फिर we are dealing with this formula. And mark my words, it is not like that कि कोई एक ही फॉर्मूला से काम करना है. It is not like that कि आपको हर बार इसी से काम करना है. It is not like that कि सिचुएशन देख के आपको ये फॉर्मूला चूज करनी है. नहीं, you may opt any formula. अगर सारे क्वेश्चन आप इसी फॉर्मूला से कर रहे हैं तो भी I am good with that. If you are dealing with all the question with single formula, then it is also okay. आप इसी से कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है. पर क्या है ये देखिए, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई किया, सिग्मा x minus x bar, और आई एम यूजिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ समेशन. समेशन की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ. We guys are knowing that समेशन को अगर मैं ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊं, then जो भी कांस्टेंट टर्म रहेंगे उसके ऊपर समेशन कोई इफेक्ट नहीं करेगा. जैसे कि यहाँ पे देखिए 2x into x bar. अब x bar हमको पता है, what is x bar? X bar is a mean. X bar is a mean, where x is a variable. x bar mean है, that the value of x bar is constant, और x जो है वो तो वेरिएबल है, वो तो वेरी करेगा. ठीक है, तो जब समेशन इसके पास आएगा, then 2 into x bar that will remain as it is. उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा. This summation will just act on x, summation x, is it? So ऐसी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज से सिंप्लीफाई किया हुआ इसे, नथिंग एल्स. और उसको सिंप्लीफाइड वर्जन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखना चाहे तो जहां पे x बार है या तो फिर y बार है, जहां पे x बार y बार वाले जो टर्म है उसको मैंने रिप्लेस किया उसके फॉर्मूला से. x बार इज नथिंग बट समेशन x डिवाइड बाय n, y बार इज नथिंग दैट इज समेशन y डिवाइड बाय n. सो इसी से इसको रिप्लेस किया. देखिए y बार है उसकी जगह पे समेशन y डिवाइड बाय n, x बार जहां पे उसकी जगह पे सिग्मा x डिवाइड बाय n. सो एंड वन मोर थिंग, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू. नन ऑफ the faculty will gonna ask you कि भाई ये simplified version ये derive करके दिखाइए. आपको derivation से कोई मतलब नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि आपको समझ में ना आए. We can understand this thing. It's very very easy. But let it be as it is. We are not worried about that. कि ये derivation कैसे आया. We are not focusing on that. But we need to have this formula. इसका simplified जो version है, that is sigma x y minus sigma x sigma y divided by n under root of sigma x square minus sigma x the whole square divided by n sigma y square minus sigma y square divided by n. So ये जो पूरी फॉर्मूला है ना, ये भी हमको चाहिए. So what you will do, mention this particular formula once again. इसको भी लिख के रखिए अपने क्लास वर्क में जल्दी से. Let me erase the rest of the thing. Yes, I'm worried about this. I'm talking about this. इसको भी लिख के रखिए कि यार की एक और फॉर्मूला ये भी है, जल्दी से. I'm giving you 30 seconds. You're supposed to note down this formula also. Are we good? Are we good? Hopefully. Let me take you further. Now, before going for example, let me give you 3 different properties of coefficient of correlation. Coefficient of correlation माने कि यार उसकी 3 अलग-अलग प्रॉपर्टीज है जो मैं जल्दी से आपके सामने डिस्कस कर दूं.
ये तीन प्रॉपर्टी पीपीटी में तो मैंने प्रूफ के साथ भेजी हुई है, पर we are not concerned about the proof. We are just supposed to have this property. The first one is the coefficient of correlation lies between -1 and 1. अब ये तो हमको पता है, R की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही रहेगी, कम से कम -1, ज्यादा से ज्यादा +1. -1 से कम नहीं हो सकती, +1 से बढ़ नहीं सकती. So इसको प्रूव किया है, वो जरूरी नहीं है, जाने देते हैं हम. First is R always having a range from -1 to +1. Now the second, this is important. Correlation coefficient is independent of change of origin and change of scale. अगर इस पूरे डेटा का अगर आप ओरिजिन चेंज कर रहे हो या तो फिर स्केल चेंज कर रहे हो, then the coefficient of correlation will not affect. यहाँ बोल दिया सर आपने, change of origin and change of scale. If I'm going to subtract a fixed number from first variable, मान लीजिए कि x की वैल्यू कुछ इस तरीके से है. लेट मी शो यू. सपोज वेरिएबल x, as I said that mostly we will be dealing with a bivariate data only. So हमारे क्वेश्चन में दो डेटा रहेंगे, एक ऑब्जर्वेशन x के लिए, दूसरा y के लिए. सपोज x का डेटा कुछ इस तरीके से है, 250, 260, 270, 290, 300, like this. Suppose these are the observation related to x. Now जैसे हम क्वेश्चन में आगे जाएंगे, आपको पता चलेगा कि भाई आपको x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है, या तो फिर x का स्क्वायर निकालना है, या तो फिर y का स्क्वायर निकालना है. अब ये 250 है तो उसका स्क्वायर, नो डाउट वी आर हैविंग अ कैलसी विद अस, सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो सकता है 250 का स्क्वायर बहुत आसानी से हो सकता है, बट दैट विल बी बिग नंबर. Is it? Surely that will be big number. और इस सारे का एडिशन जो अगर मैं निकालूं यहाँ पे नीचे, समीशन ऑफ x बार, it will be quite big, और थोड़ा बड़ा रहेगा. So in this particular case, if I'm gonna change this data, इस डेटा को अगर मैं चेंज कर रहा हूं, इस सारे डेटा में से मैं कोई फिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं. सपोज आई एम सब्ट्रैक्टिंग 270 फ्रॉम ऑल ऑफ देम, इन सारे में से 270 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, देन I can say that I'm changing the origin of this data. और ऐसा करने से R की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. This is what I'm saying. So by that way, this data is free from change of origin, and it is also free from change of scale. देखिए यहाँ पे 250 है, 260 है, 270, 290, 300. Now if I wish to change the scale, that means कि सभी को मैं अगर 10 से डिवाइड कर दूं, then it will be 25, 26, 27, 29 and 30. If I'm dividing all them by one of the fixed number, then we can say that I'm changing a scale. और ऐसा करने से, स्केल चेंज करने से भी R में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. मैं 250 लेके वो कैलकुलेशन पूरा करूं या फिर 25 लेके पूरा कैलकुलेशन करूं कैलकुलेशन मेथड से, I will have the same value of R. Coefficient of correlation same ही मिलेगा. So this is what the change of origin and change of scale, and the coefficient of correlation is free from both of that. वो origin और scale के change से independent है पूरे के पूरा, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. तो अगर कोई क्वेश्चन में x और y की वैल्यू काफी बड़ी होगी तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे. Is it? And the things will be quite easier for us. उससे चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी हमसे, हमारे लिए. ठीक है. So once again, I'm not worried about this particular proof. जान लीजिए उसे. And the third, this is also important. Two independent variables are uncorrelated. Two independent variables, suppose my height and your weight, both these data are independent. और independent variable के लिए R की वैल्यू, वो डेटा कोरिलेट हो ही नहीं सकता ना. कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी हाइट कितनी भी बढ़े, आपका वेट नहीं बढ़ेगा. आपका वेट कितना भी बढ़े, मेरे हाइट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो इफ टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, देन दे आर अनकोरिलेटेड. इसको भी ज्यादा नहीं. यस, नाउ हियर वी आर. आफ्टर हैविंग दिस थ्री प्रॉपर्टीज विद अस, तीन प्रॉपर्टी कौन सी है फिर से एक बार याद करवा दूं. दैट फर्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ R विल बी ऑलवेज lying between -1 and +1. Let me denote it. फर्स्ट क्या था?
कि आर की वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में ही रहेगी। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो भी हमने याद रखी है। देन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से इंडिपेंडेंट है। ओरिजिन एंड स्केल अगर मैं चेंज कर दूं डेटा का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आर की वैल्यू में। एंड थर्ड इज इट्स ओके, अनरिलेटेड इंडिपेंडेंट डेटा जो है वो अनकोरिलेटेड है। इट्स वी आर फाइन विद दैट, वो लिखने की जरूरत नहीं है। बट ये दोनों ध्यान में रखे ऑलवेज। माने कि कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे रिलेटेड टू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आपका आंसर -1 से +1 के बीच में ही आएगा, वो आंसर कभी बड़ा नहीं होगा। ठीक है, टेक केयर। Okay, now let's have the first example. What is first example? Calculate the coefficient of correlation or the correlation coefficient between x and y using the following data. Now we are having two different data with us. यहाँ पे data दो है, sorry data जो है उसमें दो variable दिए हुए। One of the variable is x, second is y. Now what we are supposed to find? We are supposed to find the coefficient of correlation. Coefficient of correlation. Now, whether the method is mentioned over there or not, आप देखिए क्वेश्चन में कहा कहीं पे मेथड मेंशन की हुई है, नहीं की हुई है। I have not specified the method. In this particular question, I have not specified the method कि किससे करना है। When method is not provided, the name of the method is not provided, then we will be always dealing with the Carl Pearson's formula. Carl Pearson's formula. हर बार अगर मेथड नहीं लिखी हुई है तो कार्ल पियर्सन से ही करना है। इसका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रैंक कोरिलेशन बेस से भी मिल सकता है, बट इफ वी आर सपोज्ड टू यूज रैंक कोरिलेशन मेथड देन इट विल बी प्योरली मेंशन ऑन द क्वेश्चन। अगर मेथड मेंशन नहीं की हुई तो हर बार कार्ल पियर्सन से ही करना है। ओके, क्लियर? गुड। अब नाउ लेट्स ऑब्जर्व द सिचुएशन। क्या है? आई एम हैविंग टू डिफरेंट वेरिएबल्स x and y. Now, and I need to identify the coefficient of correlation. And the coefficient of correlation, हमारे पास तीन अलग अलग फॉर्मूला है। उसमें से पहली जो मैंने आपके कोई बुक में लिखवाई वो क्या थी? x minus x bar summation of x minus x bar y minus y bar divided by under root of summation x minus x bar the square into summation y minus y bar the square. This is the formula. This is the formula for the coefficient of correlation, is it? Now let's try to identify the coefficient of correlation for this particular question. I'm having two variable x and y. That means I'm dealing with the bivariate data. अब काफी कुछ यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बिफोर मूविंग फॉर द आर। देखिए आपको प्योरली पता चल सकता है कि आर की वैल्यू, ये तो आपको पता है कि आर विल बी हैविंग अ रेंज -1 to +1। और एक बात भी आपको पता है, we are quite concerned about we are also knowing about positive and negative correlation। मोहम्मद तू बता बेटा, तुझे क्या लग रहा है? देख इन दोनों के बीच में x और y के बीच में जो कोएफिशिएंट जो कोरिलेशन होगा वो पॉजिटिव लग रहा है तुझे कि नेगेटिव लग रहा है? मोहम्मद, इफ यू आर हियर देन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मोहम्मद? यस सर। यस बेटा, क्या लग रहा है बेटा तुझे? इन दोनों के बीच में जो कोरिलेशन होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? देख एक बार सोच, पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके से डिफाइन कर रहे थे हम लोग? याद है तुझे या फिर किसी और से पूछूं मैं? मोहम्मद? सर एक बार किसी और से पूछ लीजिए। ठीक है। यशांग, अर्पित, अर्पित अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अर्पित, अर्पित मिश्रा, अर्पित मिश्रा, अनम्यूट योरसेल्फ। अर्पित, अर्पित या तो फिर यशांग। यशांग अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. यस, दिस इज अर्पित और यशांग। Yes, sir. Hi Yashang, you said that or the chat box that correlation between x and y will be negative. क्यों ऐसा लगा तुझे? देख बता मुझे। तो अगर हम स्कैटर्ड मेथड से प्लॉट करेंगे तो एक नीचे की तरफ ग्राफ जाता है, टॉप क्यों क्यों? अभी ये 1 मिनट में तो तूने ये स्कैटर डायग्राम इसको ग्राफ पेपर में प्लॉट नहीं करा हुआ, नहीं किया ना? अभी तो तूने नहीं किया, 1 ही मिनट की बात है। रफली किया सर। रफली कर लिया तूने इतनी देर में, ठीक है।
अगर नहीं करना है, चल स्कैटर डायग्राम मेथड का यूज नहीं कर रहा हूं मैं, ग्राफ वगैरह यूज नहीं कर रहा हूं, क्या तू इन दोनों को देख के बता सकता है कि इसके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन होगा या नेगेटिव? वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम? Yes, sir. क्योंकि एक जो है पॉजिटिव मतलब बढ़ रहा है और एक इसका ऑपोजिट दूसरा घट रहा है। एग्जैक्टली देखिए, ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ इन एक्स, वैल्यूज आर प्रेजेंट इन एक्स, देखिए 2 4 5 6 8 11, ये इंक्रीज हो रहा है एक्स के लिए, एंड रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ y इज डिक्रीजिंग, 2 के लिए 18 थी, 18 12 10 8 7 5, so x and y both are moving in the opposite direction, is it now? X is increasing, y is decreasing. If both the variables are moving in the opposite direction, then surely we can say that the coefficient of correlation or the correlation will be negative between both of them. तो यहां से एक बार और फिक्स हो गई बेटा, क्या हुई कि r की वैल्यू जो होगी ना वो नेगेटिव होगी। यशांक, we will be getting r as a negative, हमारी r की वैल्यू पक्का नेगेटिव आएगी। Yes, Divijit, you are correct. One is increasing, other is decreasing. Arpit, you are also correct. Vijay Raj is also correct. Good. Now, अब देखिए हमारे पास R के लिए दो फॉर्मूला है, हाँ ना? अब उन दोनों में से कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है? कोई भी। -1 से 0 के बीच में होगा रीच। Yes, beta, you are absolutely correct. Yes, the value of R will be between -1 and 0, surely. But now, what we are doing? अब R की फॉर्मूला ये भी है और एक R की फॉर्मूला और भी एक है जो कि आपने लिख के रखी है आपकी क्लास वर्क में, दैट इज सिग्मा x सिग्मा y वाली। अच्छा, अब कौन सी यूज करूं यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज करूं? इट इज नॉट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यू मे यूज एनी ऑफ द फॉर्मूला। अगर आपको लगे कि आपको चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन से के साथ बात करनी है तो भी इट्स ओके, अगर नहीं करनी है तो भी इट्स ओके। चलिए, ये पहला जो क्वेश्चन है ना, हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। वो एक और फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों से मैं इस क्वेश्चन के लिए आर की वैल्यू निकाल दूं और फिर हम देखेंगे कि वी मे यूज एनी ऑफ द फॉर्मूला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, अब फर्स्ट फॉर द फर्स्ट मेथड, फॉर द फर्स्ट टाइम आई वांट टू डील विद दिस। मैंने ठान लिया कि भाई इस फॉर्मूला से करना है, x minus x bar y minus y bar divided by summation x minus x bar the square y minus y bar the square। अब आप क्या करेंगे? मेरे साथ हर कोई बच्चा अपने लैब बुक में एक टेबल बनाएगा अभी के अभी, जिसमें फर्स्ट कॉलम आएगी x, दूसरी होगी y। चलिए जल्दी से, x वाली कॉलम, y वाली कॉलम और सारा डेटा यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। x is 218, then after 412। ऐसी प्रोसेस हम एक ही बार करेंगे बिकॉज इट्स क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ा बोरिंग भी लगेगा क्योंकि ये ऑनलाइन सेशन। पर एक ही क्वेश्चन के लिए इतना टाइम मैं दे पाऊंगा आपको, बाकी के लिए मेरे पास तो पीपीटी में प्रेजेंट है, सारा कुछ मटेरियल है, मैं वहीं से आपको दिखाऊंगा। पर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल ऑफ अस विल बी वर्किंग टुगेदर, आप सभी लोग मेरे साथ करेंगे अभी के अभी। चलिए, एक्स और वाई का ऐसा एक टेबल बना दीजिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इस फॉर्मूला को, हमको क्या चाहिए? We need to have x minus x bar, we need to have y minus y bar, we need to have its square। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मेरे पास x bar होना चाहिए ना। What is x bar? x bar is a mean for the x। अब मीन की फॉर्मूला हमको पता है, अगर x का मीन निकलना है तो क्या होगा? सिग्मा x डिवाइड बाय n। अब n माने कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। For this particular question, the value of n is 6। So मैं क्या करूंगा? समीशन ऑफ x डिवाइड बाय 6। अब इन सारों का एडिशन कर दीजिए जल्दी से। 2 4 6 5 11 6 17 17 25 36 कितना होगा? सिग्मा x देखिए 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हर कोई बच्चा मुझसे बात करना चाहिए प्लीज। यस, सिग्मा x विल बी 36। सिग्मा y बताइए कितना होगा जल्दी से। You are having Kelsey 8 12 30 40 40 55 60। Sigma y will be 60। Yes, correct, Arpit. Good. So once I am having sigma x sigma y, then I will be able to go for x bar and y bar। अब x bar की फॉर्मूला ये sigma x डिवाइड बाय n, तो y bar की फॉर्मूला होगी sigma y डिवाइड बाय n। sigma y sigma x है मेरे पास 36 डिवाइड बाय 6 it will be 6 और sigma y है मेरे पास that is 60 डिवाइड बाय 6 will be 10। So x और x bar y bar की वैल्यू है मेरे पास, x bar is 6, y bar is 10। Now
यूजिंग बोथ दैट, अब इन दोनों का यूज करके मैं बनाऊंगा मेरी नेक्स्ट कॉलम में आई एम इन नीड ऑफ x माइनस एक्स बार। अब x बार की वैल्यू है मेरे पास, x बार की वैल्यू क्या है, x बार है 6, सो आई एम इन नीड ऑफ x माइनस 6। मैं पूरा जो x वाला कॉलम है उसमें से 6 सब्ट्रैक्ट करूंगा और माइंड द ऑर्डर x minus 6, that means 2 minus 6 for the first value, it will be 2 minus 6, it will be minus 4, 4 minus 6, it will be minus 2, 5 minus 6 माने कि minus 1, 6 minus 6 0, 4 minus 6 2, and 11 minus 6 minus 5, sorry, plus 5, my mistake. It should be 11 minus 6, 5 plus 5. कौन आ रहा है अभी? Someone join this session right now. प्रांजुल, प्रांजुल क्या हो रहा है बेटा? आज नेटवर्क का इश्यू है तेरे साथ? सो फर्स्ट कॉलम जो हमने प्रिपेयर की दैट इज x माइनस एक्स बार। अब देखिए अगर आप इसका एडिशन करें ना तो ऑलवेज जीरो होगा, ऑलवेज जीरो होगा। व्हाई? एक स्टेटमेंट हमने पढ़ के रखा है हमारे हाई स्कूल में, दैट इज डेविएशन टेकन फ्रॉम द एक्चुअल मीन इज ऑलवेज जीरो। तो ये क्या है? ये एक्चुअल मीन के साथ डेविएशन ही है। इसका टोटल अगर आप निकाले ना सिग्मा x माइनस एक्स बार तो जीरो ही होगा हर बार, हर कोई इक्वेशन के लिए, सिर्फ इसके लिए नहीं, हर बार। पर वो नहीं काम है हमको। सर क्या बोल रहे हो, ये चाहिए हमको सिग्मा x माइनस एक्स बार। हमको सिग्मा x माइनस एक्स बार नहीं चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए और उसका समीशन चाहिए। ठीक है, सो आई एम नॉट वरीड अबाउट इट्स टोटल। अगर इसका टोटल निकाले तो भी जीरो होगा, पर उसका कोई काम ही नहीं। नेक्स्ट आई नीड दैट इज y माइनस y बार। व्हाट इज y बार? y बार इज 10, सो I will be doing y minus 10. So हर एक y का ऑब्जर्वेशन जो, यस बोलता जा चल, -8, -2, यस 0, 2, 3, 5. 2, 3, 5 is it? अब अगर इसका तू टोटल निकाले ना बेटा तो जीरो ही होगा। नहीं निकालना है, देखिए -10 ये +10, पर कभी भी x माइनस एक्स बार y माइनस y बार का टोटल नहीं चाहिए हमको। What is that? That is actually the deviation taken from the actual mean, or deviation taken from the actual mean is always zero. So we are not in need of this. अब मुझे चाहिए इन दोनों का प्रोडक्ट। देखिए न्यूमेरेटर में क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है उसका समेशन है। So I am in need of product of both this. So मेरी नेक्स्ट कॉलम क्या होगी? That is x minus x bar into y minus y bar. This will be my next column. Yes, please. Who's that? प्रियंक सर 18 में से 10 निकालेंगे तो 8 नहीं बचेंगे। कहाँ पे बेटा? हाँ तो माइनस क्यों लिखे सर आपने? सर फर्स्ट एंट्री 18 में से ये प्लस है, ये तीनों माइनस होंगे। माय मिस्टेक, यस इट्स माय मिस्टेक। It's 18 minus 10 plus 8 plus 2. This will be -2 -3 -5. Correct? Is it? अब सही है ना? यस सर। Good. चल next we are in need of product of both this. तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे हम। -4 plus 8 वो कितना होगा? -32. -2 plus 2 -4. -1 into 0 it will be 0. This will be 0. 2 3s are -6. And 5 into -5 it will be -25. अब सारी वैल्यू जो है या तो जीरो या तो फिर नेगेटिव है, तो इनका पूरा जो एडिशन होगा उसको हम मेंशन करेंगे समेशन x माइनस एक्स बार into y minus y bar से। दिस इज नथिंग बट द समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस y बार। और इसका एडिशन क्या आ रहा है बताओ जल्दी? -36 -42 42 और 25। व्हाट विल बी द एडिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलम? इनका एडिशन क्या आएगा? 31 and 36. 31 36, yes 67, but it will be -67, yes. So इस फॉर्मूला में जो न्यूमरेटर है ना वो रेडी है। चल इस फॉर्मूला के लिए जो न्यूमरेटर है वो रेडी है। न्यूमरेटर हमको पता चल गया, दैट इज -67, इज इट? अब वी नीड टू गो फॉर द डिनोमिनेटर। अब इसका डिनोमिनेटर हम देखेंगे। चलिए डिनोमिनेटर के लिए अभी टर्म प्रिपेयर करना बाकी है। We are not having summation x minus x bar. सर आपने बोला था summation x minus x bar 0 होगा, बट यहाँ पे कुछ अलग बात है। देख, this is summation x minus x bar the whole square. So मुझे क्या करना है? x minus x bar का स्क्वायर निकालना है और उसको ऐड करना है। मानी कि ये जो मेरी कॉलम है ना इसका स्क्वायर मैं करूंगा। I'll be dealing x minus x bar the whole square. अब ये मैं पहले करूंगा, चलिए जल्दी से।
इसका स्क्वायर करना है, -4 का स्क्वायर 16, 4, 2 का स्क्वायर 4, 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 का 4 और 5 का 25। बताओ जल्दी से क्या होगा एडिशन? 30, 30 और 20, 50। दिस विल बी 50, यस और नो? गुड। सिमिलरली आई एम इन नीड ऑफ y - 5 बार द स्क्वायर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? इसका एडिशन लूंगा, सॉरी इसका स्क्वायर निकालूंगा, y - 5 बार। सो y - 5 बार द होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा? 8 का स्क्वायर 64, then after 4, then after 0, then after 4, -3 ka square, that will be 9, and -5 ka square 25. Now what will be the addition of this? कोई बताएगा मुझे जल्दी से? What will be the addition of 5 - 5 by the square? Unmute yourself. Okay. ड्रॉप बॉक्स में डाला 106. सही है? Good. Now this is a table we need to draw, we need to present in the examination. इस टेबल के बगैर नहीं कह सकते आप. If you are not presenting this table, then I will not allot you the full marks. Now, once we are having all this, अब जैसे कि मेरे पास ये सब कुछ आ गया, इस फॉर्मूला में जितने टर्म थे, this were the terms that न्यूमरेटर में जो है वो summation x - x बार y - y बार, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर, स्क्वायर रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर, सारे टर्म्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, सारे के सारे. ये 60 से यहाँ से निकाल के नीचे ही लिखता हूँ मैं, चलिए रुकिए, that will be good. Good. So in the numerator I am having 67, -67. In the denominator I am having the square root of, इसकी जो वैल्यू है summation x - x bar the square, that is 50, and square root of this particular is 106. आप कैलसी से ये कैलकुलेट कीजिए और बताइए मुझे क्या आ रहा है जल्दी से. It will be minus, surely it will be minus क्योंकि numerator है नेगेटिव है, denominator पॉजिटिव है. क्या आ रही है वैल्यू? कोई एक बताएगा मुझे जल्दी से? 67 divided by root of 50, root of 106. What should be the value? Yes, -0.92. 0.92. बात हो गई खत्म, पूरे मार्क्स हमारे साथ. This is the way you are supposed to deal with the example. Let me know how many of you are able to get this. I am having 47 students in front of me and I am replying for all the 47 comment on the chat box. कितने लोग हैं जिसको पता चला कि coefficient of correlation कैसे निकालते हैं? जल्दी से. I am waiting for all of you. हर एक बच्चा चैट बॉक्स में लिखना चाहिए. समझ में आया? नहीं आया तो बताओ. I'll explain once again. अगर समझ में आ रहा है तो भी कोई तो अच्छी बात. सिर्फ 31 रिप्लाई आए हैं. आई नीड ऑल 47 रिप्लाई ऑन द चैट बॉक्स. जो भी बाकी अभी के अभी डाले. समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा? ऑल ऑफ यू. यस ऑलमोस्ट. कितनी अच्छी बात है. देख क्या लगता है निकिता? अनम्यूट योरसेल्फ. दरेडी अनम्यूट कर अपने आप को. समझ में आया अच्छी से? हाँ सर. पक्का? हाँ. अब तू बता मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मैं x और y को यहाँ पे चेंज कर दूं. यहाँ पे 2 है उसको मैं 12 कर दूं, ये 4 है उसको मैं 40 कर दूं, ये 5 को मैं 52 कर दूं, 6 को 63 कर दूं. तुझे एक नया टेबल बनाना है, नई वैल्यूज आएगी, नए कांस्टेंट आएंगे. यहाँ पे नीचे जो 3 जो फिगर थे, ये x बार y बार बदल जाएगा, ये एडिशन बदल जाएगा, फिर यहाँ पे 3 नंबर बदल जाएंगे. समझ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? समझ रहे हो? यहाँ पे डेटा कोई भी हो क्या फर्क पड़ेगा? वंस वी आर क्लियर विद द मेथड, वंस वी आर गुड विद ऑल द प्रोसेस, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि डेटा कौन सा है. यहाँ पे फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन वी वर हैविंग 6 सेट ऑफ डेटा. मेरे पास 6 ऑब्जर्वेशन थे. हो सकता है मेरे पास 10 है, हो सकता है मेरे पास 5 ऑब्जर्वेशन है. सो वी आर नॉट वरीड. दिस इज वेरी वेरी इजी. इज इट ना? एग्री विथ मी और नॉट? One of my statement, this part is very very easy. कितने लोग आप मेरे साथ एग्री कर रहे हो? तो एग्री लिखना है. डिसएग्री हो तो डिसएग्री लिखना है. चलिए, how many of you are agree with me? एग्री लिखना है, एग्री डिसएग्री लिखना है. ये बहुत ही आसान होने वाला है. 2 ही लोग एग्री करे, बाकी तो सो रहे हैं. मानव भारती जश, बाकी के लोग एग्री नहीं कर रहे मेरे साथ. Is it like that? Agreed. Good. चलिए छोड़िए, अब एग्री खेलना बंद करते हैं.
इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं इसको पूरा इरेज कर रहा हूं। कौन सी फॉर्मूला थी जो हम लोग हमने यूज की? द फॉर्मूला वाज दिस। ओके ओके, क्या हुआ? अरे भाई निकल जाना। ठीक है, so the formula was that, जो पहली फॉर्मूला थी कार्ल पियर्सन की, उसके हिसाब से हमने ये क्वेश्चन किया था। दैट फॉर्मूला वाज r इक्वल्स टू समेशन x माइनस x बार y माइनस y बार डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस x बार द स्क्वायर एंड सिग्मा y माइनस y बार द स्क्वायर। इससे अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और वैल्यू आ रही थी, दैट वाज r इक्वल्स टू माइनस 0.92। दैट वाज द वैल्यू, दैट वाज द आंसर, इज इट? And we had interacted with this particular formula. अब ये भी कंफर्म नहीं है, it is not needed कि ये इसी फॉर्मूला से आप करें, आप अलग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सी? Let me show you. If I wish to deal with this particular formula, if I wish to deal with this particular formula which is present in the screen right now, देखिए स्क्रीन के ऊपर कौन सी है फॉर्मूला? सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा वाई द होल स्क्वायर डिवाइड बाय। अगर इस फॉर्मूला से मैं काम करूं तो मुझे क्या करना है, तो किस तरीके से हो सकता है? अब व्हाट इज डिफरेंस इन दिस एंड अर्लियर फॉर्मूला? इन द अर्लियर फॉर्मूला आई वाज सपोज्ड टू डील विद द एक्स बार एंड वाई बार। मुझे एक्स बार वाई बार निकालना था क्वेश्चन में से। फर्स्ट वो पहला स्टेप हमारा वही था कि x बार y बार कैसे निकाला, सिग्मा x माइनस सिग्मा x डिवाइड बाय सिग्मा y डिवाइड बाय। अब अगर उस तरीके से नहीं करना है तो ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप। उसमें क्या है देखिए, इसमें टर्म्स क्या है? इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला द टर्म्स आर सिग्मा x इनटू y, माने कि x और y का प्रोडक्ट, उसका समेशन। तो पहला ये x और y जैसे भी थे मैंने लिख डाले, इज इट? नाउ उन दोनों का प्रोडक्ट करके समेशन निकालू। देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट 2 into 18, 2 18 36, 4 12 48, वो यहाँ पे 36 48 50 48 56 55 जो भी है, और उन सब का एडिशन दैट इज 293 दैट इज हियर। देन आफ्टर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स हमने निकाला होगा, सिग्मा वाई निकाला होगा, उसको n से, n माने कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 6 है, मैंने लिख के रखा है, उससे डिवाइड करो। Then we are in need of summation x square. Now देखिए एक और बात, this is different. सिग्मा और x square, सिग्मा ऑफ x square लिखा हुआ है या तो फिर लिखा हुआ है सिग्मा ऑफ x the whole square, ये दोनों में काफी फर्क है। Take care, both these are not same, both these are different. What is this? This is सिग्मा x का स्क्वायर करना है, x का टोटल करके उसका स्क्वायर, और इसका मतलब क्या है, x का स्क्वायर करके टोटल करना है, तो दोनों अलग है। Take care. So first I need to have sigma x square. तो मैंने x का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 4, देन 4 16, देन 11 121, इन सभी का एडिशन किया, जो भी आ रहा है दैट इज 266। सिमिलरली आई नीड सिग्मा y स्क्वायर, तो y का स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर 324, और सभी का स्क्वायर करके जो भी एडिशन आ रहा है दैट इज 706। नाउ वंस आई एम हैविंग ऑल दिस डेटा इज might be my hello, am I audible? Hello. Yes, sir, you are audible. I guess good. Might be my screen is not visible now. आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी? हाँ सर, दिखाई दे नहीं रही है। दिखाई दे रही है सर। मेरा लैपटॉप यहाँ पे पावर कट हुआ, मेरा लैपटॉप बंद हो चुका है, फिर भी स्क्रीन दिखाई दे रही है। अच्छी बात है, चलो जब तक दिखाई दे तब तक बात करते हैं। अब देखिए, in this now I'm delivering the session from my cell phone. Okay, now इस पूरे क्वेश्चन में देखिए, once I'm having all that term sigma x sigma y then sigma x square sigma y square and sigma xy, ये तीनों ही अगर मैं फाइंड कर पाऊं तो इस फॉर्मूला से अगर मैं करूं तो भी r की वैल्यू वही आएगी जो पहले आई थी। तो वैल्यू ऑफ r will be, now my screen is not visible क्योंकि अब चली गई। But I am audible, yes or no? I am properly audible. Yes, sir, you are properly audible. Good. So that is what I was saying.
कि फॉर्मूला कोई भी आप अप्लाई करें, पहली वाली फॉर्मूला अप्लाई करें या दूसरी वाली फॉर्मूला अप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे आंसर के ऊपर. Then might be you will be you are having some of the confusion कि सर क्या होगा कि क्लास में से आधे स्टूडेंट ने फर्स्ट फॉर्मूला से सॉल्व किया एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट सॉल्व फ्रॉम द सेकंड फॉर्मूला, तो मार्क्स किसको मिलेंगे? सभी को मिलेंगे. Is it? So take care. So this is what the way we can identify the coefficient of correlation. ओके, मेरे सामने ही कुछ लोग ये इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर कर रहे. इट विल बी देयर. मेरा लैपटॉप फिर से स्टार्ट होगा 5 ही मिनट में. तब तक हम क्या करेंगे? चलिए, हर कोई बच्चा अपनी लैब बुक उठाए जल्दी से, और आई एम गिविंग यू द डेटा रिलेटेड टू एक्स एंड वाई. व्हाट यू आर सपोज टू डू for next 5 to 6 minutes, you will be calculating the coefficient of correlation for one of the question I'm saying. Okay, data में लिख के क्यों देखूं? चलिए, मैं I'm sending you one of the exercise. चलिए, सभी के व्हाट्सएप ग्रुप ABC तीनों में मैं एक एक्सरसाइज शेयर कर रहा हूँ, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, उसके लिए we'll be finding the coefficient of correlation. Just give me 1 minute. Exercise 3A, where it is, correlation. Yes, here it is. Just be here. Yes. Correlation. Let me send this particular file to all the groups, A, B, and C. Batch. Am I properly audible, Pranjul? Yes, sir. मैंने अभी आपके व्हाट्सएप में एक एक्सरसाइज 3 सेंड की हुई है, ठीक है? Yes, sir. We got it. ऑल ऑफ यू उसको डाउनलोड कीजिए, ओपन कीजिए जल्दी से. And till the time, let me share my screen even. That will help you. Present screen. Start presenting. Start now. Let me know whether you are able to see my cell phone screen or not. प्रांजल को एक बता. दिख रही है मेरी मोबाइल की स्क्रीन भी दिख रही है ना सभी को? Yes, sir. It is visible. Good. अब दोनों फॉर्मूला आपके बुक में लिख के रखिए. अगर किसी ने नहीं लिख के रखी है तो अभी मैं बोल रहा हूँ, चलिए लिख लीजिए. R equals to न्यूमेटर में समेशन x minus x bar y minus y bar in the denominator under root of x minus x bar the whole square into under root of y minus y bar the whole square. जो पहली फॉर्मूला थी ना, उससे हम सॉल्व करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 1, वी आर सपोज टू कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा. अब उसमें x और y की वैल्यू कितनी है, चलिए देख ले एक बार. फर्स्ट क्वेश्चन में रही है हर कोई बच्चा अपने मोबाइल में, या तो फिर वो पीडीएफ जो मैंने भेजी उसको डाउनलोड कर लीजिए. अगर वो नहीं कर रहे तो अभी स्क्रीन के ऊपर जो डेटा है उसके साथ रहिए. देखिए x और y जस्ट ऑब्जर्व कीजिए क्या है. x12, y14, 9, 8, 8, 6, 10, 9, 11, 11, 12, 13, 12 and 7, 3. क्या देख के कोई बताएगा मुझे? क्या आप में से कोई देख के बता पाएगा इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन होगा या नेगेटिव कोरिलेशन होगा? Whether it is positive or negative.
whether it is positive or negative. It is not always like that कि आपको पता चल ही जाए. You may rearrange this. इसको rearrange करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पहला जो सेट है 12 14 उसको आप लास्ट लिख दीजिए. 11 11 वाला है उसको फर्स्ट लिख दीजिए. 7 3 वाला है उसको बीच में घुसा दीजिए. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So order is not important. So what you are supposed to do first, for the first question, you will be calculating the R using your calc quickly. वो टेबल पूरा बनाइए. टेबल में कॉलम इस तरीके से होगी. पहला x फिर y. आपको x बार y बार आइडेंटिफाई करना है. देन x माइनस x बार y माइनस y बार उन दोनों का प्रोडक्ट. एंड देन x माइनस x बार द स्क्वायर y माइनस y बार द स्क्वायर. क्विकली गो थ्रू इट. समझ में आ रहा है सभी को? हेलो, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? हेलो, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. We are getting. Good. So I'm waiting for your answer. I'm giving you 5 minutes. Quickly solve कीजिए इसे और मुझे बताइए क्या आ रहा है आंसर. ओके, आपको मेरे स्क्रीन की जरूरत है या फिर आप वो पीडीएफ एक्सेस कर रहे हैं? इफ यू आर नॉट इन नीड ऑफ माय पर्टिकुलर स्क्रीन तो मैं इसको हटा दूं यहाँ से. ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ. I'm waiting for your answer. Once you are done, please let me know.
So I'm having two different answers, 0.89, 0.94. Okay, मोहम्मद। 0.9 हाँ मोहम्मद, तू बता बेटा क्या रहा आंसर तेरा? 0.94 रहा? 0.94 सर 0.94 ओके बेटा। मोहम्मद, तूने कौन से फॉर्मूला से किया बेटा वो सॉल्व? कॉस्ट वाली जो मैंने बताई वही ना? जो सर आपने बताया सर, पहले सर वो हाँ, good. सिग्मा निकाला, फिर मीन निकाला, फिर वो फॉर्मूले में पूरा पुट कर दिया, मतलब जो था एक एक चीज पुट ठीक है, की। चल चल सब कुछ वेरीफाई करते हैं। चलिए मोहम्मद, तू बता बेटा एक्स बार की वैल्यू क्या आ रही है? सर रुकिए एक्स बार का दिया सर, थोड़ा रफली X किया बार की है, वैल्यू देख बता। रहा हूँ एक हाँ मिनट। इट्स ओके, रफली कोई बात नहीं। एक्स बार बोल दे। सर एक्स बार 70 आ रहा है। एक्स बार 70 आया। चलिए, हर किसी को एक्स बार 70 आ रहा है? और ऑफ यू आर हैविंग द सेम एक्स बार? ना सर, एक्स माइनस। अरे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 7 10 आएगा एक्स बार। 70 टोटल होगा। यस सर, हाँ वो 70 टोटल होगा, मैं गलती से बोल दिया सर। सो एक्स बार की वैल्यू 10 होगी ना शायद? यस सर, और वाई बार की वैल्यू 9 होगी। टोटल 63 टोटल 63 है। हाँ यस सर। तो फिर वाई चलिए माइनस हर कोई वेरीफाई कीजिए। एक्स बार 10, वाई बार कितना है बेटा? 9 ना? कितना बोला तुमने? 9 हाँ 9 9। हाँ ठीक है। फिर सर न्यूमेटर वो वाला जो है सिग्मा, सर न्यूमेटर सिग्मा वाला जो एक्स है माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर वो आएगा 28। वो आएगा 28। सिग्मा वाई फिर माइनस वाई सिग्मा बार का होल स्क्वायर वो आएगा 84। ओके गुड। फिर सिग्मा एक्स न्यूमेटर वाला टर्म वो जो कंबाइंड यस सर होगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार, वो आएगा 46। नहीं देख उसको कैसे बोलते हैं, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। समेशन दोनों दो बार समेशन। वो कितना आएगा बेटा? सर 46 आएगा। 46। हर किसी को ये आ रहा है? सर फाइनल बोलो सर। ओके टू हैव 0.01 एरर। आई एम गेटिंग 0.95। दर्शन ऐसा क्यों है बेटा? अगर तू कैसे से कर रहा है तो इट विल बी एग्जैक्टली करेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर इसमें एरर नहीं जनरेट होगी बेटा, क्योंकि यहाँ पे हमने एरर के लिए कोई विंडो छोड़ी ही नहीं है। क्यों तुझे एरर क्यों आ रही है? चल दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। तू बता तेरा एक्स बार वाई बार हमारे जितना ही है, द सेम एक्स बार एंड वाई बार यू हैविंग। वैल्यूज आर सेम। तो यूजिंग लैपटॉप कैलसी, हाँ ऐसा हो सकता है बेटा। अब तेरा लैपटॉप का कैलसी जो है ना उसमें 0.95 नहीं, बहुत बड़ा डिजिट दिखा रहा होगा। क्या दिखा रहा है बता मुझे एग्जैक्ट? 0.95 ब्ला 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 क्या आ रहा है? सर 0.9485 आ रहा है। 0.9485 आ रहा है। और हमारी वैल्यू है 9485, वही है। ओके लास्ट डिजिट जो है वो तुझे 9485 बोल रहा है। इट्स टोटली फाइन। दैट डिपेंड्स, वो हमारे कैलसी में हो सकता है बेटा। इस कैलसी को अगर तू फिक्स कर देना अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, देन योर कैलसी विल गिव यू द सेम आंसर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दैट केस योर आंसर इज वैलिड। गुड। चलिए हर किसी को ये समझ में आ रहा है प्रॉपरली, ठीक से? द वे आई वाज डिलीवरिंग उसी तरीके से समझ में आ रहा है सभी को? बताइए जल्दी से। Are we good with that? Yes, 0.9485 जो 9484 जो भी आंसर है that is correct, वही आंसर आएगा इसका। मोहम्मद म्यूट कर दे अपने आप को बेटा। How many of you are good with this question? बताइए जल्दी से अभी के अभी। कितने लोग ने क्वेश्चन किया और कितनों को आंसर आया? भारती, मोहम्मद, निकिता, श्रीनारायण, भवदीप, मानव 5-6, दिव्यजीत, अर्जन 9 लोग। बाकी के लोग कहाँ हैं? गिरीश गॉट इट सर, गुड। राज पंजवानी को भी आंसर आ गया, विजय राज को भी आ गया, जस विदानी को भी आंसर आ गया, देवांश, दीप, दर्शन, कृणाल, आयुष, जयदीप को भी आंसर आ रहा है। अच्छी बात है चलो ऑल ऑफ यू आर, दैट मीन्स ऑल ऑफ यू आर डूइंग इट प्रॉपर्ली और सभी को आंसर भी आ रहा है। अच्छी बात है। गुड। चलिए लेट मी गिव यू द next slide. Let me present you the next slide. The power is back. So I'm just in need मेरी एक बार वो स्टार्ट कर लूँ। पीपीटी कहाँ है? Here is the PPT. There it is. अब चलिए the same जो आपने वहाँ पे टोटल लिखा है ना, जो भी आपका आंसर आ रहा है
लेट मी शो यू, लेट मी हेल्प यू कि इसको कैलसी से कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने बोल के रखा है इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन दैट यूजिंग द साइंटिफिक कैलसी वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर instantly within a 10 second, within just a 10 second, 10 सेकेंड में हमको वो आंसर मिल जाएगा यूजिंग ए कैलसी। हाँ, कोई ना तो कोई टेबल प्रिपेयर करना है, ना तो कुछ प्रिपेयर करना है, वो कैलसी से अगर हम कर रहे हैं 10 सेकेंड में हमको आंसर भी मिल सकता है। किस तरीके से? लेट मी शो यू। नाउ आई एम वंस अगेन हियर फ्रॉम माय पीसी, होपफुली यस, हियर आई एम कनेक्टिंग। चलिए, हर कोई बच्चा अपना कैलसी ले ले अपने हाथ में एंड आई एम गोना शो यू कि भाई कैलसी से ये कैसे होता है। नाउ लेट मी शेयर माय स्क्रीन प्रेजेंट नाउ। यस अ विंडो एंड हियर इट इज। इसी की बात हो रही है, इसी क्वेश्चन की। My screen is visible to all of you or not? My screen is visible to all of you or not? Yes, sir, it is visible. देखिए, ये अलग वो जो फर्स्ट क्वेश्चन था जिससे हमने सॉल्व किया था, उसको अलग से सॉल्व करूं तो भी आंसर भी आएगा 0.9203, जो कि पहली बार आया था एग्जांपल 1 का। ठीक है, अब रीड दिस नोट। इफ यू आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, अगर आप आर इस फॉर्मूला से कर रहे हो ना, या तो फिर कोई भी वो अगली वाली फॉर्मूला अभी जो क्वेश्चन हमने किया उससे कर रहे हो, कोई बात नहीं, आर तो हमको कैलसी से मिलेगा। बट इफ यू आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर, तो इसमें जो सारे टोटल है ना, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर एंड सिग्मा एक्स वाई, ये सारे टोटल भी आप वेरीफाई कर सकते हो आपके कैलसी से। सर वो तो कर ही सकते हैं ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सबको ऐड कर दो, वेरीफाई कर लो। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग लाइक दैट। कैलसी डायरेक्टली देगा आपको। चलिए, बी रेडी विथ योर कैलसी। लेट मी शो यू, लेट मी मेक यू लर्न कैलसी कैसे यूज करते हैं इसमें से। सो होपफुली ऑल ऑफ यू आर हैविंग योर कैलसी इन योर हैंड, होपफुली। ओके, अभी स्क्रीन के ऊपर जो एग्जांपल 1 है जिसका आंसर है दैट इज -0.9203, द होल प्रोसेस, द परफेक्ट सॉल्यूशन इज देयर ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। अभी स्क्रीन के ऊपर है। नाउ लेट्स टेक हेल्प ऑफ अ कैलसी। If you had not cleared your कैलसी, तो एक बार मैं हेल्प कर दूं। फर्स्ट प्रेस शिफ्ट मोड एंड देन press button 3 and reset your कैलसी. Now what you are supposed to do, after resetting your कैलसी, press the mode key, press the mode key. Is it? Now मोड की प्रेस करने से आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। वी आर इन नीड टू चूज थर्ड वन, जिसके ऊपर लिखा हुआ है रिग्रेशन, REG। कोई एक बच्चा मुझे चाहिए अपने साथ बात करता हुआ, कोई एक ही, हर कोई नहीं, कोई एक बच्चा चाहिए जो मेरे साथ बात करे, जिसके पास कैलसी भी हो और मुझसे बात करे। सर, यस सर। Who's that? Raj. Okay, Raj, you are loud and clear properly. I can hear you. अब देख बेटा, पहले सिर्फ मोड की प्रेस कर अपने कैलसी में। कर दिया सर। चल, 3 ऑप्शन आ रहे हैं। फर्स्ट में COMP लिखा है, सेकंड में SV लिखा है और थर्ड में क्या लिखा है? REG। Is it? Yes sir. Choose third one. Yes sir, done. After pressing 3, once again you will be having 3-4 different options. First में आ रहा है that is linear, LIN, Sir? linear. Yes, please. Who's that? Sir, can you repeat it? Sir, Bharti here. Sir, can you repeat it again? Yes, let me start it once again. All of you, please be with me. हर किसी के पास कैलसी होना चाहिए। सबसे पहले आपको अपना कैलसी रीसेट करना है। कैसे करेंगे? शिफ्ट मोड और 3 प्रेस करके। शिफ्ट मोड 3 प्रेस करो, रीसेट करो पूरा कैलसी। रीसेट हो चुका, चलिए ठीक है। नाउ भारती एंड राज बोथ आर विथ मी। भारती, तू भी अपना माइक अनम्यूट रख बेटा। भारती, अनम्यूट योरसेल्फ। भारती, गुड। भारती, राज दोनों अनम्यूट रखे, हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आफ्टर रीसेटिंग योर कैलसी, प्रेस मोड की प्रेस कीजिए।
You will be having Done, three sir. options. First, COMP, second, SD, third, REG. REG stands for the regression. We need to choose third one. 3 press करने से 3 press कीजिए. After Done, choosing sir. that 3, we will be having lots of options. First में है linear, second में logarithmic, third में exponential. And now we are in the linear regression right now, linear correlation. Is it? So we need to choose first one. One choose कीजिए. अब one choose करने से स्क्रीन पूरी फिर से 0 हो जाएगी और आपके नोटिफिकेशन में कैल्सी के नोटिफिकेशन ऊपर एक REG लिखा होगा. हर किसी के कैल्सी में लिखा हुआ है REG. बाकी sir. राज, is it there? Yes. यस सर, है Yes, sir. बीच That में. means what? That means what? कि they had set it a कैल्सी. हमको जिस मोड में हमारा कैल्सी चाहिए उस मोड में अब आ चुका है. रिग्रेशन कोरिलेशन वाले मोड में कैल्सी आ चुका है. ठीक है, फिर से एक बार कर दूं. मोड प्रेस कीजिए, उसमें से REG थर्ड ऑप्शन जो है 3 चूज कीजिए. देन चूज फर्स्ट लीनियर. ओके, गुड. नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी आर सपोज टू एंटर दिस डेटा. ये एक्स और वाई का पूरा डेटा एंटर करना है हमको कैल्सी के अंदर. सब वो डेटा एंटर करना मतलब क्या है? इसका एडिशन 2 + 4 + 5. नॉट लाइक दैट. वी गोना यूज दिस डेटा, वी गोना एंटर दिस डेटा. ऑब्जर्व द स्क्रीन. जो स्क्रीन है उसके ऊपर मैं पेन से कुछ लिख रहा हूँ, ऑब्जर्व कीजिए प्लीज. Yes, how we gonna enter this data? We are going to enter this data किस तरीके से? ऑर्डर पैर में. देखिए मेरी फर्स्ट ऑर्डर पैर है, that is 2,18. When x is 2, y is 18. So I need to enter this data like this. इसको मैं enter ऐसे करूंगा कि x की वैल्यू 2 होनी चाहिए, y की वैल्यू 18 होनी चाहिए. Then 2, sorry. Yes. Okay, what's wrong with that? Wait. Just. ओके, मैंने वो की प्रेस की रखी. 2,18 मैं इस तरीके से एंटर करूंगा. अब कैसे एंटर करना है इसको? चलिए कैल्सी में फर्स्ट प्रेस 2 टाइप कीजिए कैल्सी में. देन आफ्टर डिलीट बटन के ऊपर जो है कॉमा वाला बटन है. देखिए डिलीट के एग्जैक्ट ऊपर कॉमा वाला बटन है. 2,18. योर स्क्रीन मस्ट बी 2,18. लेट मी शेयर माई स्क्रीन इवन. वेट. मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर करूं. रुक जाओ. लेट मी शेयर माय स्क्रीन फ्रॉम द मोबाइल इवन. हियर इट इज. प्लीज यहाँ पे रहिए. अगर आज मैं 2 मिनट ज्यादा ले रहा हूँ देन इट्स ओके. कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि मैं काफी सारी बार आपको start presenting right now. What I'm doing, I'm sharing my screen. Even I'm sharing my laptop, mobile screen, ताकि wait, क्या हुआ? What's wrong with this? What's wrong with this? स्क्रीन चली गई सर फोन की. Okay, रुक जा. Just a minute. Yes. Start presenting. Start now. My screen is visible to all of you, is it? Yes or no? Yes, sir. देखिए आपको एंटर इस तरीके से करना है. 2,18. 2,18. Is it 2? Then after press comma button, comma is here, exactly here on the delete button. 2,18. Now after pressing that 2,18, you need to use this M plus memory plus button. By pressing memory plus, your screen will say will
give you n equals to 1. That means what? You had entered the first data. You had entered the first data. आपने एक ऑब्जर्वेशन एंटर कर दिया, ठीक है। अब मुझे जब मेरी दूसरी वैल्यू जो है उसको एंटर करना है, तो फिर से क्या करूंगा मैं, जो भी वैल्यू है 3, जो भी है वो यहां से मैं प्रेस करके m+ दबाना है, ठीक है। हर बार यही करना है। सो वंस अगेन लेट मी कंटिन्यू विद दैट पर्टिकुलर, जल्दी से, क्योंकि वो खत्म करना है हमको, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। Once again, my screen, let me resume my presentation. Resuming presentation, my screen will be there once again. Will be there, should be there. जल्दी से आजा भाई। Yes. Here is my screen once again. Is it? So first data was 2,18, which we had already entered. अब क्या करेंगे? अब कोई और की प्रेस नहीं करनी है, आपको क्लियर नहीं करना। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर है n equals to 1, ठीक है। उसको क्लियर नहीं करना, आपको प्रेस करना है 4,12, एंटर 4,12, 4,12, फिर से m+ दबा दीजिए एक बार, ऑल क्लियर के ऊपर जो बटन m+। नाउ योर स्क्रीन विल बी n equals to 2. Is it Bharti, Raj, both of you are with me? Yes, sir. Raj, Bharti, N equal to 2. Bharti, Yes, sir. n equal to 2. अब Yes. चलिए थर्ड क्या है, 5,10, एंटर 5,10, m+, n equal to 3. Is it? 6,8, m+, n equal to 4. 8,7, m+ प्रेस कीजिए 5. 11,5, m+ प्रेस कीजिए, n equals to 6. So अभी आपके स्क्रीन में है n equals to 6. That means this whole data, we had entered this whole data in a Calci. वो हमने पूरा हमारा Calci में डाल दिया, वो पूरा स्टोर है। Now how do I need to share? क्या हर कोई बच्चे, हर कोई स्टूडेंट हमारे साथ है, यहाँ तक है? ये पूरा डेटा रिग्रेशन मोड में कैल्सी में एंटर हो चुका है हर किसी के लिए? जल्दी से बताइए, प्लीज बताइए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये क्लास में अगर मेरे सामने हो तो बहुत ही आसान है, पर यहाँ पे थोड़ा टफ है ऑनलाइन ये सिखाना आपको। पर यस, गुड। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन वंस अगेन। Wait, now how we will able to identify this all the values. अभी आपकी स्क्रीन में ये होगा, देखिए, your screen, your Calci screen will be having n equals to 6. अब क्या करना है आपको? अब क्या करना है? शिफ्ट प्रेस एक बार क्लियर एसी कर दीजिए। इट्स ओके। अरे यार मेरा Calci ओके, मैंने वो शिफ्ट ऑफ कर दिया, ठीक है। रुक जाइए, मैं जल्दी से इसको पूरा डेटा एंटर कर दूं एक बार। जिसने भी नहीं देखा है वो एक बार देख लीजिए। मेरा Calci रिग्रेशन में देखिए, यहाँ पे REG दिख रहा है सभी को, ठीक है। अब आई एम एंटरिंग ऑल दैट डेटा 2,18 m+, ओके, वो M7 हो गया, गलती हो गई। शिफ्ट मोड, रीसेट ऑल, देन मोड, जिसमें से 3, देन आफ्टर फर्स्ट, जल्दी से 2,18 m+, then after 4,12, 4,12 m+, then after 5,10, अरे भाई कुछ चला जाना, 5,12, 5,10, third data 6,8, 6,8, fourth data 8,7, 8,7, fifth data, and 11,5, n equals to 6. Is it? एक बार चलिए यहाँ तक थे, अब क्लियर कर दीजिए। अभी रिग्रेशन में अब आपको प्रेस करना है शिफ्ट, नाउ शिफ्ट एंड 1, शिफ्ट 1। अब ये देखिए ऑप्शन आ रहा है, सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए अगर आपको मिलेगा, सिग्मा एक्स चाहिए 2 की प्रेस करके मिलेगा, एन की वैल्यू चाहिए 3 प्रेस करके मिलेगा। ये एरो की से आगे की वैल्यू भी आ रही है, देखिए। अरे यार रुक जा, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई। तो अगर मुझे चाहिए कि इस डेटा के लिए सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है, देन आई विल प्रेस 1 इक्वल टू, आई विल हैविंग सिग्मा एक्स स्क्वायर। देखिए स्क्रीन के ऊपर 266। अब वही तो था मेरी वो वाली स्क्रीन पे ऊपर, सिग्मा एक्स स्क्वायर 266। अगर मुझे चाहिए कि सिग्मा
वाई चाहिए। अरे यार मेरा कैलसी इज नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली, इट्स ओके। पर होपफुली यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग यूजिंग दैट मेमोरी में डालने के बाद क्या सर, उसके आगे फिर सॉरी वो आपका मेमोरी call में वाला डालने आ के गया। बाद सिग्मा 1 प्रेस कर दे, सिग्मा 1 सॉरी शिफ्ट 1, शिफ्ट प्रेस करके 1 प्रेस करने से तुझे सब मिलेगा। शिफ्ट 1 सिग्मा एक्स स्क्वायर मिलेगा, शिफ्ट 1 ही बता रहा 1 प्रेस कर दे। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? 1 लिखने के बाद 1 ही बता रहा। नहीं, क्या लिखा तूने? 1 शिफ्ट 1 दबाया, हाँ फिर 1 ही आया। नहीं, शिफ्ट 1 तूने दबाया। शिफ्ट 1 के बाद हाँ, 1 equal- लिखा आया कैलसी में, फिर इक्वल टू दबाया तो 1 ही आंसर बता नहीं रहा है। नहीं नहीं नहीं, देख देख फिर से शिफ्ट प्रेस कर फिर 1 प्रेस कर। सर क्लियर कर दूं? नहीं क्लियर नहीं करना है, हाँ उसको क्लियर कर दे, कोई बात नहीं, एक बार ऐसे कर दे। सर आपके उससे जैसा जाएगा सेम हुआ, नहीं। कैलसी बंद हो गया। वो शिफ्ट और एससीटी ने किया होगा। भारती तू रही यहाँ पे? भारती Yes, sir. हाँ। Yes, sir. शिफ्ट प्रेस कर, Yes, sir. अब 1 प्रेस कर। हाँ आ गया सर। वो जाएगा नहीं, वो मेमोरी में ही है अभी, तू क्लियर नहीं हुआ, ठीक है? तू शिफ्ट मेरा प्रेस भी आ कर फिर गया। 1 प्रेस कर। अब तेरी स्क्रीन में क्या दिख रहा है ये बोल। सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स और एन। अब Six. तुझे क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर चाहिए यस सर। तो तू 1 प्रेस कर। 1 प्रेस करने से तेरी स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन में दिखेगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, दिख रहा है? यस सर आ रहा। अब तुझे इक्वल टू प्रेस करना है। Yes, sir. इक्वल टू 266। Sir, आ आ गया. गया? अब तुझे वापस जाना है, मान ले वापस जाना है, तो तू क्या करेगा? ऑल क्लियर दबा दे, एक बार दबा दिया, फिर शिफ्ट प्रेस कर और 1 प्रेस कर। तुझे सिग्मा एक्स चाहिए तो 2 चूज कर ले, इक्वल टू प्रेस कर दे, एक्स का टोटल आ गया 36। आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. अब देखिए और एक बात, शिफ्ट प्रेस कीजिए हर कोई बच्चा और 2 प्रेस कीजिए, शिफ्ट के बाद 2, शिफ्ट 2। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या आएगा भारती? देखिए एक्स बार है, फिर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स है। आगे जाने से Yes, आगे sir. जाने Yes, से sir. Yes. एरो की दबाइए, कैपिटल ए बी और आर, कैपिटल ए बी और आर आएगा एक बार, 2 बार एरो हाँ, की सर। दबाने हाँ, से सर। अब 3 चूज कीजिए एंड क्लिक कीजिए उसे। 36 Sir, 36. क्या 36? आर। R. आर की वैल्यू 36 नहीं हो सकती, -0.92099203 होगी। आर कभी 36 हो सकता है? देख दिव्यजीत बोल रहा है 0.92। फिर से एक बार चल, 36 आया. फिर से एक बार कर। 36 सिग्मा क्या है शिफ्ट, मेरा भी। वो सिग्मा तू देख रहा है, शिफ्ट प्रेस करके 2 प्रेस कर, शिफ्ट 2 प्रेस कर, क्लियर क्या कर, सर? शिफ्ट 2 प्रेस कर, किया? एक और 2 बार एरो की प्रेस कर, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एरो। यस सर। ए बी आर। ए बी आर, आर के ऊपर क्या? 3 के ऊपर आ रहे, यस सर। Yes, sir. 3 दबा के इक्वल टू प्रेस कर। क्या आया बोल? हाँ सर आ गया सर, -0.9203. आ गया? अभी मेरी स्क्रीन के ऊपर देख जो भी है, देख अभी तुझे मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। ये माई स्क्रीन इज, वही डेटा था ना, देख आर की वैल्यू क्या है, माइनस। यही आया था आंसर। अब तुझे जितने भी टेबल में जितने भी वैल्यू देख, सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है, सिग्मा एक्स स्क्वायर है, सिग्मा वाई स्क्वायर है और सिग्मा एक्स वाई, वो सब कुछ दे सकता है तुझे कैलसी। हाँ सर सब तो इट विल बी वेरी वेरी इजी गेटिंग। यस सर। चलिए इसकी बात अब आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे भी एक और काम है। ये लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। और हर एक बच्चा